Hello everyone, welcome back. So in the last video we have practiced some questions and that question were based on all of our previous topic or whatever we have studied in physics from starting to the end. Now from here we are starting a new topic. The new topic is very interesting one and that topic is acceleration. In today's video I'm just gonna counter about acceleration and you will only know about acceleration and its type, and in the last if we get some time we will also practice some numericals. We'll see the variety of question being asked in the variety of questions. Then we will further see about the the next topic which I'll be telling you in the last second of this video. Okay, now first is today's topic is acceleration. Okay, first is what is acceleration. When a body is have when a body is said to be in acceleration. Okay, so first thing is what is acceleration? The rate of change in velocity is called as acceleration. Acceleration, the rate of change in velocity, the rate by which velocity changes is referred to as acceleration. Okay, now the mathematical formula for acceleration is denoted by small a, and you know that I'm going to tell you why we apply a sign on this. This is a vector quantity, that is why. So acceleration is change in velocity. Change in velocity what? Anything, whatever you study is a change. If I say change in x, that means what? That means what? x2 minus x1. We have studied in the last video. Okay. I forgot to mention one thing here, that in the last video there was a mistake. I'm really sorry for that. The mistake was that I written that x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This was the equation. But now there I written delta x plus delta y, which is not suitable. So what we are doing here, that यहाँ पे रूट के साथ ही रहेगा. अब ये यहाँ पे क्या है? चेंज हुआ है. चेंज देखो, फाइनाइट चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. ठीक है, फाइनाइट मतलब जो चेंज होता है रियल में नहीं, मतलब जो बड़ा चेंज होता है ना, जो बड़ा चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर बहुत ही छोटा चेंज हो तो हमें पता है हम उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी dx अपॉन dt. तो यहाँ पे गलती क्या होती है हमसे कि हमें इसे लिखना चाहिए था डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. ये हमारा आ जाता है एवरेज वेलोसिटी. Okay, so this was my mistake in the last video. I'm really sorry for that. Okay, now just we are continuing that topic here. तो चेंज मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस. तो इसका चेंज कैसे लिखते हैं? देखो, कोई चीज फाइनल होती है, कोई चीज इनिशियल होती है. फाइनल जहां से खत्म होता है, इनिशियल जहां से शुरू होता है. डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है. तो वेलोसिटी, change in velocity is what? V minus u, and wherever you see the rate, it is divided by the time. So acceleration is v, this is v, this is u, v minus u by t, that where v is final velocity, u is initial velocity, and t is time taken. Okay, so this is the mathematical formula. Okay, so now just highlight it and note it down in your copy if you are noting it down or if you are watching it seriously. Okay, rate of change in velocity. Now
There are four things which we study in any physical quantity. First is its definition, mathematical representation, its unit, and at the last unit and what kind of quantity it is. And at the last I also told you that we will calculate dimensions also. Okay. So now what is the unit? What is the unit of acceleration? Unit of acceleration is meter per second square. Wait, let me write like this. Unit is meter per second square, because here is meter per second, here is also meter per second. ओके, सो मीटर पर सेकंड नीचे सेकंड होता है और नीचे भी सेकंड होता है, तो ये सेकंड जाके ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमारे पास ये कौन सा क्वांटिटी होता है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इस वेक्टर का बहुत बड़ा यूज है इसमें, अभी हम देखेंगे उसको. और क्या, इसका डायमेंशन जरा सा देख लेते हैं हम लोग. देखो डायमेंशन, अब हमें वेलोसिटी का डायमेंशन पता है. क्या होता है वेलोसिटी का डायमेंशन? lt का पावर -1. ये कैसे आता है? ये आप प्रीवियस वीडियो को रेफर करिए. lt का पावर -1, ये हमारे को वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया, और ये डिवाइडेड बाय टाइम है. अब ये टाइम 1 में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाता है lt का पावर -2. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का हम लोग वो करते हैं. ये t ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -2. तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशन होगा वो क्या होगा? lt का पावर -2. ठीक है, दिस इज दी actually the whole concept. If you want to write it down, please note it down. Otherwise I am moving to the types of acceleration. This is very important. First let me explain about acceleration. किस चीज पे डिपेंड करता है? पहली चीज, acceleration जो होता है हमारा, acceleration depends upon change in velocity. दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन. सब क्या लिख रहा हूं, सब बता रहा हूं आपको. चेंज इन डायरेक्शन, ध्यान से देखो. एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डेल्टा वी. दैट मींस अगर वेलोसिटी चेंज होती है बॉडी की तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होता है बॉडी का फिर भी एक्सेलरेशन होगा. ऐसा क्यों? Velocity is a vector quantity which has its magnitude as well as direction. So whenever the direction of a body is changed, it also undergoes acceleration. देखो acceleration में हम किसी बॉडी को तब बोलेंगे जब उसका या फिर velocity change हो रहा हो, ठीक है, या फिर उसके velocity के direction में change आ रहा हो. If there is a change in the direction of the velocity, then that body is said to be accelerated, right? सो ये उसका कुछ डिपेंडेंस है. अब हम उसका थोड़ा सा टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है. तो पहला जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दूसरा, अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कर लेते हैं, वो थोड़ा सा सही रहेगा. ठीक है, ग्राफ के साथ करेंगे, ग्राफ लास्ट में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए. देखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेकेंड इज non-uniform acceleration. What is uniform acceleration? As we are reading that if an object, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ना, उसको लिखने की क्या जरूरत है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल सेकंड 2 सेकंड में, 1 सेकंड में बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रहा है, हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड वो बढ़ते जा रहा है, तो इस केस में हम बोलते हैं उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ, हाँ इस बार सीधा बन गया. तो एक सिचुएशन जो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी चाहे कोई भी ग्राफ हो. ये कौन सा ग्राफ है? ये वीटी ग्राफ है, याद रखना, ये वीटी ग्राफ है. कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा? नोट दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन. ठीक है, देखो अब मैं एक बार लास्ट में एक बार चीज देख लो, ये इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद. ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स
अस एक्सेलरेशन, ये हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल होगा वो हर जगह सेम होता है, जिसके कारण हम हर जगह जो है स्लोप की वैल्यू सेम पाते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। चलो, नॉन यूनिफॉर्म का वही केस जो होगा ऑपोजिट होगा, जब बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, अनइक्वल वेलोसिटी उसकी इक्वल टाइम इंटरवल में हुई, या फिर इक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो चेंज कर रहा हो, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, पैराबोला या फिर कर्व, ठीक है। ये हमें क्या है, ये भी हमारा वीटी ग्राफ है, और ये स्लोप क्या होगा? ये स्लोप ही हमें देता है क्या? ये स्लोप हमें क्या देता है? ये स्लोप हमें क्या देगा? ये स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। और हाँ, अभी दो चीजें तो हम लोग भूल ही गए। एक्सेलरेशन में एक और एक्सेलरेशन है, अच्छा हम लोग उसको एक स्पेसिफिक टॉपिक बनाएंगे, वो थोड़ा एडवांस है, ठीक है। हम लोग उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी हम लोग बेसिक चीजें सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। थर्ड है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, जो बॉडी के एक्सेलरेशन में माइनस का साइन नहीं होता है ना, तब उस केस में उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सिंपली कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है वो भी समझाएंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस क्या है कि दैट u इज ग्रेटर देन v, ठीक है, सॉरी नो, v इज ग्रेटर देन u। जब v बड़ा होगा u से, अच्छा कोई भी अगर नंबर ले लो 4 और 2, तो अगर 4 बड़ा है 2 से, तो क्या कभी आंसर नेगेटिव में आएगा क्या? दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो 4 - 2 करोगे तो नेगेटिव तो आएगा नहीं। इसीलिए जो नेगेटिव जो वैल्यू फाइनल की जो वैल्यू होगी ना, जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जब इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू से ज्यादा होती है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस होता है, ठीक है। v is greater than u। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या? गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, घूम नहीं रही, चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। फाइनली ब्रेक अप्लाई करती है वो, और उसका स्पीड इतना गिर जाता है कि वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। सो दिस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द डी एक्सेलरेशन, ठीक है। जब गिरावट आती है एक्सेलरेशन में, जब गिरावट आती है बॉडी में, जब बॉडी के एक्सेलरेशन में गिरावट आती है, उस गिरावट को हम क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन। ओके, सो द नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका केस क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस कुछ इस तरीके का होता है। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस में क्या होता है? u इज ग्रेटर देन v। u जब इनिशियली 0 होगा तो यार तो वैल्यू नेगेटिव आएगी ना आएगी, ठीक है। इसको जरा सा एक बार नोट करो, अभी मैं थोड़ा सा एक बार मार्कर इसको चेंज कर लेता हूं। ओके, तो u और v का था यहाँ पे एक्सेलरेशन, एंड यस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब जरा सा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लेते हैं एक बार। देखो थोड़ा सा एडवांस है वो, बट मैं एक बार उसको बता देता हूँ, ठीक है। नहीं भी समझ आए तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ग्राफ, अब ग्राफ हम लोग से सीधा बनना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब हमें आदत हो चुकी है। मैं फ्री हैंड कल हमने इसका इस्तेमाल किया था बनाने के लिए, ठीक है। और ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब अगर ये मेरे समझो एक ग्राफ है, बॉडी इस तरीके से है, तो अगर बॉडी ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो एक बात बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन का केस ये होता है, बॉडी ने ये फाइनल समझो ये वाला, अच्छा छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये तो मैंने नीचे से ही ज्वाइन कर दिया। तो देखो ग्राफ है, समझो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, दोनों पॉइंट को जरा सा एक बार ज्वाइन करके देखो। ये हमने ज्वाइन कर दिया, चल यार पॉइंट को और नीचे ले लेते हैं, हर बार ज्वाइन करो। हाँ, अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन
इज दैट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन जब दो टाइम इंटरवल के बीच में हमें फाइंड करना होता है। देखो जब तक तुम्हें दो टाइम इंटरवल ना गिवन हो, एक्सेलरेशन जो एवरेज है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कभी भी फाइंड, बिकॉज एवरेज एक्सेलरेशन एनी एवरेज कैन ओनली बी फाउंड इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल और इफ देयर इज एनी टू पॉइंट। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस कैसे होगा? देखो इंस्टेंटेनियस, ये बताओ इंस्टेंटेनियस तो यहीं पे होगा ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, यहीं पर डिफरेंस आता है एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। दिस इज, इसको मैं थोड़ा सा फिर हेलो एवरीवन, एवरेज एक्सेलरेशन कर रहे थे ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या था कि ये जो है ना एवरेज एक्सेलरेशन हमारा, समझो ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट ले लो और से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, दोनों को ज्वाइन करो, फिर से गलत है यार, फिर से गलत। इस बार अभी वीडियो को पॉज किया था, फिर किया, फिर गलत हो गया। अभी देखो फिर से करते हैं, थोड़ा सा और कर्व बनाते हैं तब जाके और अच्छा होगा। समझो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये एक और पॉइंट है। अब इंस्टेंटेनियस का केस देखो ऐसे ऐसे होता है। अब इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे ना, टैंजेंट, देखो सर्कल होती है ना, सर्कल, सर्कल का एक कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ। देखो ये सर्कल है, इस सर्कल पे अगर ऐसे एक लाइन एक पॉइंट को टच करके जाए तो उसे हम कहते हैं उसका टैंजेंट। ठीक है, तो ये जो है ना इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर क्या है? एवरेज में क्या है कि एवरेज जो होता है हमारा वो क्या होता है, ये सीकेंट होता है, वो होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट रिप्रेजेंट करता है, सीधा सिंपल रखा है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 18 meter per second in time 4 seconds, in 4 seconds, right, in 4 seconds. Calculate its acceleration. ठीक है, अब देखो, अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब बताओ कोई चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट हो तो क्या होगा? अगर कोई चीज बैठा हुआ है तो उसके पास वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? जीरो हो जाएगी। व्हेनेवर, याद रखिएगा, ये जब भी स्टार्ट होगा रेस्ट से कोई भी बॉडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। तो यहाँ पे v हमें क्या गिवन है? 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम यहाँ पे हमें 4 सेकेंड गिवन है। एक्सेलरेशन निकालो, v minus u, 18 minus 0 divided by 4. So this is 18 divided by 4, we get 4 4 is 16, 2, 4.5 meter per second square. Okay, now if I say that its initial velocity, okay, डेटा को थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं। ओके, a body having initial velocity equal to 7 meter per second attains a velocity of 90 meter per second, decreases its velocity and attains 18 meter per second, okay, in 4 सेकेंड। कैलकुलेट इस एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 19 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो है हमारे पास वो कांस्टेंट ही है, मतलब वही वाला है। अब बताओ 18 माइनस 19 करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस इज -1/4। अब बताओ ये क्या है? ये माइनस साइन, दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट बॉडी इज अंडर नेगेटिव एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है।
डी एक्सेलरेशन मतलब वो एक्सेलरेशन से बॉडी जो है वो बहुत कम, उसका रफ्तार बहुत कम हो गया, ये दिखा रहा है माइनस साइन। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन, तब बताओ कि ये साइन नेगेटिव में होता या नहीं होता, होता या नहीं होता। देखो साफ साफ बात तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ही डी एक्सेलरेशन है, तो माइनस साइन तभी लगाना जब एक्सेलरेशन पूछे, डी एक्सेलरेशन पूछे तो हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ हैज जस्टिफाइड दैट दिस इज अ केस ऑफ डी एक्सेलरेशन। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद और अच्छे से हमें सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। सर्कल, ठीक है, ओवल दिख रहा होगा बट ये सर्कल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसे है, चलो बॉडी एक पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है ना वो 18 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब ये बताओ कि ये एक्सेलरेशन में है या नहीं है, बस हिंदी में पूछो, एक्सेलरेशन में है या नहीं है। एक बात बताओ, ये सर्कल है ना, सर्कल का ये वाला डायरेक्शन देखो इस तरफ, ये वाला डायरेक्शन देखो इस तरफ, ये वाला देखो इस तरफ, यहाँ पे देखोगे ऐसे, यहाँ पे देखोगे, मतलब कि सर्कल में हर पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है, दैट एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, और फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो हम एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करें हम लोग, चलो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, चलो बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गोज अंडर नेगेटिव एक्सेलरेशन, नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज आपको मैं डीपीक्यूज दे दूंगा, दो क्वेश्चन जो है उसमें मेनली आपको सारे कंसेप्ट हमने करा दिए। अब क्या होगा ना, बाकी सब क्वेश्चन में देखो, बाकी सब में क्या होगा, ये एक्सेलरेशन कभी नहीं तुम्हें गिवन होगा, कभी तुम्हें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी, कभी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। बात मिला जुला के ये है कि तुम्हें इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ओके। So in this class we are ending up here only. We have just practiced 2 questions but we have covered everything, okay. And inside after this video, okay, there is no DPQ today. So in the upcoming video we'll be coming with the equations of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion के लिए कौन कौन सी equations use होते हैं, हम उनको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। And if you like this, if you love this video, okay, so please do share it and hit a like, okay. Till then we are in the next time we will be coming with the next video on uniformly accelerated motion and their equations. Till then, goodbye.